आज का जनरेशन मजा कर रहा है, पैसा नहीं बचा रहा है. When we started, right, only banks were dealing in payment services. The central bank digital currency (CBDC) is going to be a game changer. Right? Was in Kotak for 18 years, and within Kotak, I've done multiple roles, multiple departments. So I worked in broking, I worked in housing finance, I worked in wealth management, I worked in the wholesale bank. So हमने मार्केटिंग पे फोकस ही नहीं किया. Very honestly, we believed that if you have a good product and a good service, the word of mouth will be your marketing. We have 750,000 merchants on our platform. Like I told you, we want to be a India MNC. India में तो grow करेंगे. India, the market is booming. It will continue to boom. We'll also continue to grow out here. But like I said, the dream is not restricting ourselves to India. We want to be a global player. So when I was in lending and I met a guy who had taken a loan, an instant loan, right? And I asked him, he had taken a 40,000 rupee loan. I asked him, and he had taken it for 1 month. तो बोला यार 1 महीने के लिए लोन क्यों ले रहा है तू? हाँ. तो बोले फ़ोन खरीदना है. बोला फ़ोन तो तू 1 महीने बाद भी खरीद सकता है. Correct. जा तो नहीं रहा है कहीं. हाँ. राइट. सो मतलब कितना ब्याज दे रहा है? तो he was paying some 3% per month for a month. For a month. हाँ. Okay. So 40,000 था तो 1,200 रुपये का रेंट, 1,200 रुपये का इंटरेस्ट था. राइट. हाँ. सो आई आस्क्ड हिम 1,200 रुपये क्यों भर रहा है तू? तो बोलता है आप बैंकर हो? तो मैंने बोला हाँ बैंकर हूँ. तो बोलता है कि आपके लिए 1,200 है, मेरे लिए 3 बियर है. एक दिन 3 बियर कम पीऊंगा. सो the thought process is different, right? So you can't beat that thought process, right? But as long as he knows कि यार अगले महीने मेरा 1 लाख रुपया पगार आने वाला है, उससे मैं 40,000 रुपया चुका दूंगा, तो it's still okay. Not that I would not do it, but at the same time I don't know how the new generation thinks. There is no way. Because इंडिया में लाख रुपए सैलरी भी बहुत कम परसेंटेज लोगों की है, राइट? लाइक मेजोरिटी 30 से 50 के बीच में जूझ रहा है. Agreed. है ना? Agreed. तो उसमें 1 भी रुपए का ब्याज है, 1% का भी ब्याज, इट्स एक्स्ट्रा मनी ओनली. No, I agree. But not a lot of people think like you, ना? Otherwise, banks और ये NBFCs का धंधा ही नहीं होता. नहीं. सो धंधा तो फिर भी होता है. हम घर और एजुकेशन लोन बाकी अदर सेगमेंट में तो फिर भी जाते हैं ना. वो NBFCs और फिनटेक से नहीं लेते आप. हाँ, मतलब यहाँ पे परसेंटेज, मतलब वो ब्याज वाला धंधा थोड़ा एक्स्ट्रा NBFC को मिल रहा है, एंड ठीक है. बट वहाँ पे फिर रिकवरी में भी इश्यूज होते हैं, आपने देखा है NBFC में. But like I told you, see, the new generation is very different. Right, wrong, I don't want to comment. हाँ, of course. I just wanted to know your opinion. I will not do it. Yeah. If I was in their place, I would not do it. But like I said, it's very difficult for me to tell people what to do and what not to do. Yeah. As you mentioned, you are a banker. Like you, बैंकर तो वो माइंडसेट से आप हो. मुझे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइक व्हेनेवर, सो घर के लिए लोन लेना इज लॉजिकल इन सम वे कि वो एसेट है एंड वो उसका वैल्यू आएगा कि उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी. मुझे ये पूछना था कि जो डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है, जैसे मान लो कि किसी को गाड़ी लेनी है, कार या लाइक हाई एंड फ़ोन, जैसे अभी तो आईफोन के हाई एंड लाइक देयर आर, जैसे जो डिप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो लोन होता है उसका कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए? लाइक व्हाट शुड बी द depreciating asset should be bought from your own money and not from a loan. ओके. It should जैसे गाड़ी तो अभी जैसे मान लो कि 10, 15, 20 लाख की या 50 लाख की है. Though car is a depreciating asset, it also gives you benefits, right? कि आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा बच रहा है. आप गाड़ी ले रहे हो तो आप टैक्सी में घूम रहे हो या उसका पैसा आपका बच रहा है, right? And it gives you convenience, right? So there is a cost benefit analysis, right? Okay. But अभी 1 लाख का मोबाइल और 60,000 के मोबाइल में क्या डिफरेंस है? other than the brand is something which I don't know, right? So I would rather, it's personal choice here. But I would not buy, if I was in your place, I would not buy a depreciating asset with a loan. सेम. तो इसलिए बट कार के लिए आई हैड दैट थॉट कि अगर, क्योंकि कैसा है ना कि एट द एंड वन डे यू विल बाई कार, लाइक इवन आई विल बाई कार समडे, बट उसके लिए आज ही एडवाइस ले लिया. M-Swipe is a payment aggregator. We help merchants accept payments, right? So when you go to a shop and when you buy something, there are multiple ways through which you can make a payment, right? One is cash, which I don't do. But the other is you use your mobile to scan a QR, which I do. Right. You use your card to make a payment, which I do. So the POS terminal that you see, we are into that. The sound box that you see, we are into that.
the QR that you see, we are into that. So this is what we do. We help merchants accept payments. पेमेंट्स राइट सो लेट्स से कि मेरी एक किराना की शॉप है हाउ यू एंड योर कंपनी कैन हेल्प मी So आपकी शॉप है, हाँ. आपको पैसा लेना है, माल बेचना है. अभी हर आदमी कैश लेके तो नहीं आएगा. करेक्ट राइट. आपको कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शंस देना पड़ेगा पैसा देने के लिए, पे करने के लिए राइट राइट. सो कैश छोड़ के बाकी जो भी ऑप्शंस है वो हम मर्चेंट को प्रोवाइड करते हैं राइट सो दैट वो अपना सेल कर सके. करेक्ट तो मैंने ये भी सुना है कि लाइक यू नो जब भी हम कार्ड देते हैं लाइक नाउ तो वो QR से हो जाता है बट कार्ड लेने में भी बहुत सारे मर्चेंट्स लाइक ना बोलते हैं या लाइक यू नो इज देयर एनी हिडन फीस जो मर्चेंट को लग रही है इसलिए दे आर नॉट No, so there is a MDR, right? There is a Achha. merchant discount rate, depending on the card which the merchant has to pay, right, to accept the card, ओके right? अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपका 2% कट जाता है. राइट अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो 40 पैसे से 90 पैसा कट जाता है, राइट. बट अगर आप QR यूज करते हो तो कुछ नहीं कटता है. सो दैट इज व्हाई द प्रेफरेंस इज टू एक्सेप्ट मनी थ्रू अ QR देन थ्रू अ कार्ड. ओके सो इसीलिए QR इज द बेटर ऑप्शन Yeah, and it's faster, right? Faster, It's faster. You don't have to remove the card. Card. आप स्कैन करके पैसा लेके चले वहाँ उसको नंबर डालना पड़ेगा. आप पिन डालो, वो रिसीट निकालेगा. Right. So there are a lot of steps, right? हाँ. In a QR आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको सुनाई दे रहा है कि ट्रांजैक्शन हो गया, गया. आप माल लेके चले जा रहे हो. राइट इट्स अ फास्टर मोड Yeah. एंड फोन से इजी हो जाता है समटाइम्स वी डोंट कैरी वॉलेट्स आल्सो That's नाउअडेज right. That's right. And for the merchant, there is no cost, right? वो 100 का ट्रांजैक्शन होता है, 100 उसके अकाउंट में तुरंत आ जाता है Yes. राइट वो कार्ड में शायद थोड़े दिन बाद T+1 आता है. हाँ करेक्ट तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन Yes. राइट आपने तो इस इंडिया के फाइनेंशियल जर्नी को लाइक फाइनेंशियल बिहेवियर लाइक यूजर के बिहेवियर को बहुत करीब से देखा है. ये जब से कंपनी 2012 से स्टार्ट हुई आई एम श्योर यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट फेज ऑल्सो लाइक एंड देन सिंस यू जॉइन पोस्ट कोविड आपने क्या बड़ा डिफरेंस देखा कि पहले जब हमने स्टार्ट किया था या आपने स्टार्ट किया था तब आपका ऐसा ये प्रोसेस था XYZ एंड नाउ QR आने के बाद जो डिफरेंट बॉल गेम है इस इंडस्ट्री में. So I'll tell you the 3-4 changes that I've seen in the industry. When we started, right, only banks were dealing in payment services. तब Correct. QR था नहीं, हाँ terminals था, राइट और वो महंगा वाला टर्मिनल्स था जो छोटा मर्चेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था. अच्छा कार्ड्स आर ऑल्सो नॉट दैट मच इन द मार्केट, राइट. आज 12 मिलियन है, तब 3-4 मिलियन था, राइट. डीमॉन आया, डीमॉन में Demonetization है पैसा कैश सबके पास से चला गया, करेक्ट राइट. सबको पेमेंट करना था क्योंकि माल तो खरीदना था, राइट. तो तभी क्रेडिट कार्ड का भी अपटेक आया, इश्यूएंस का भी, यूज का भी, डेबिट कार्ड का भी आया. उसके बाद QR started doing with Demon. QR was launched, but QR का biggest kick came in कोविड. क्योंकि कोविड में आपको कोई टर्मिनल पे पिन डालना तो आप डालते नहीं थे, राइट. क्योंकि आपको पता नहीं आगे किसने यूज किया, उसको कोविड था कि नहीं, राइट. यहाँ आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे थे तो यू आर सेफ, राइट. सो we've seen that stage. So these are the 3 major stages in the payment industry. 2 I've seen, right? The growth of QR, right? I've seen like crazy UPI का जो growth हुआ है, I've seen it from 2020. The growth has been phenomenal, right? I've seen that. And with that, the cards and the debit cards have also increased. आपको क्या लगता है हमेशा डिबेट होती है कि अब UPI पेमेंट करने का भी कस्टमर को पे करना पड़ेगा. यू मस्ट हैव हर्ड दैट राइट कि आपके हिसाब से वो होगा या नहीं होगा. लाइक सी होगा नहीं होगा पता नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसका जवाब दे सकता हूँ. आई थिंक देयर शुड बी अ पेमेंट, राइट. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज करंटली UPI इज फ्री, राइट. आप 100 मर्चेंट के यहाँ स्कैन कर रहे हो, मर्चेंट को 100 मिल रहा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ cost involved in processing that transaction. See, in case of card, there is a MDR which is distributed amongst a lot of players, right, so that their costs are taken care of. But in UPI, the costs are still there, but there is no income. So there has to be some sort of a revenue stream, though small, but has to be there. Okay. ये भी मुझे पूछना था कि जैसे now सो अभी QR के बाद वाला जो फेज है, नाउ व्हाट यू सी व्हाट विल चेंज इन इंडियन पेमेंट सिस्टम.
or like the payment behavior, humans behavior? So cards and debit cards will continue to grow, maybe not at the pace at which a UPI is growing. UPI will grow, but UPI will have multiple things. So अभी credit card on UPI आ गया है, तो रुपए cards आ गए, right? Credit line on UPI launch हुआ है, वो भी बढ़ेगा. But I think the biggest change is going to come in two things. One is cross-border, right? And the second, I think the central bank digital currency, CBDC, is going to be a game changer, right? My gut is that the government will focus a lot on CBDC, and you will see CBDC acceptance going up in the country in the next 3-4 years. Could you explain this CBDC? It's a digital currency issued by the Reserve Bank, right? Okay. It's something like a Bitcoin? No. It is a digital currency. It's not a Bitcoin. Bitcoin के पीछे कोई asset नहीं है, right? Okay. Here the central bank is issuing this digital currency, तो उसमें आप physical note नहीं है, right? Okay. So there is no printing, there is no logistics, right? Okay. It's made on a blockchain, and you can do the same things that you can do otherwise, right? Okay. आप CBDC से आप उनके QR के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो. UPI का जो QR है उसमें भी आप CBDC कर सकते हो. अच्छा. But the beauty about CBDC is that it is a programmable currency. Okay. Okay. So programmable currency आज मैं डिसाइड कर सकता हूँ कहाँ यूज होगी. Okay. So the government can decide that the subsidy can be through CBDC and can also monitor the end use. Right? Okay. आप लेंडिंग में पैसा दे रहे हो किसी को, आप CBDC के थ्रू दे सकते हो, और CBDC में एंड यूज क्या है आप मॉनिटर कर सकते हो, वो भी देख मॉनिटर कर सकते हो. जैसे ये जो स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे आते हैं, या इवन सो अगले 3-4 साल में मेरे को लगता है CBDC विल बी अ बिग थिंग. सो UPI ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो. Within UPI you will see UPI, credit card on UPI, and credit line on UPI growing, and CBDC. हमने क्रॉस बॉर्डर की बात की. You as a company also available in multiple countries. That's could right. you tell me what all countries you are currently in? And so currently we are in UK, we are in Bahrain, we are in UAE, we are in Singapore. We want to be in 10 countries in the next 12 to 18 months. I'm born, brought up and spoiled in Mumbai, right? Did my graduation, post-graduation from Mumbai, was in Kotak for 18 years, right? And within Kotak, I've done multiple roles, multiple departments. So I worked in broking, I worked in housing finance, I worked in wealth management, I worked in the wholesale bank, right? So I have done multiple things, and this is the only thing that I know. Okay. So why fintech is यही आता था, यही कर रहा हूँ, right? I didn't want to learn. I don't think I'm intelligent enough to learn a new trade, right? So continue to focus on what I know well. And why M-Swipe? I feel that one Manish Bhai, who's the founder, and I know each other for a long time, right? Wherever you work, you need that comfort, right? So I had a lot of comfort with him, and I felt that this company is doing so well in India, right? This can be a global giant, right? Right. And that is the vision that I'm working with. So I want to ensure that M-Swipe is a global player in the next 12 to 18 months. We want to be in 10-12 countries, right? We want 50% of our revenues to come from outside. I want to be known as Indian MNC, right? So that's the dream with which I am working. कि बाहर जाऊँ तो लोग बोले यार ये इंडियन MNC है, right? Like we call all the foreign MNCs. I also want to be called a MNC, but a Indian MNC. Great. It's a great vision. बहुत इंडियन को ये इंस्पायर करेगा, because we as a kids, or we now I am a parent also, but हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि our kids should work either in a government sector or some MNC. Right. MNC हमेशा ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े नाम जो इंटरनेशनल कंपनीज है, US ओरिजिन कंपनीज है, और वहीं पे काम करना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ लुकिंग दिस गुड करियर पाथ. बट व्हेन इंडियन कंपनीज इज अगर इंडिया की कंपनी इंटरनेशनली जा रही है, देन पीपल विल से कि हाँ इसमें काम करना है. हाउ ओल्ड इज योर सन? He's 20 months now. He's so don't worry, after 20 years when he's looking for a job, we'll be in 25-30 countries, so so hopefully we'll send him to some other country. He can take over a whole business of one of the country. We can do that. Thank you so much for that assurance. मेरा ये मेन क्वेश्चन है कि जैसे
कॉम्पिटिटर्स तो हर बिजनेस में होते हैं, लाइक यू ऑल्सो हैव कॉम्पिटिटर्स. हाउ यू try to sell your product, not sell, but how try to present your product in a merchant's mind ताकि वो हमारी सर्विस ले, like आपकी सर्विस ले. So like I told you, see, we believe in word of mouth. तो अगर आप मेरी सर्विस से खुश हो और आप किसी को रेफर कर रहे हो तो मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा बिकॉज ही नोज यू आर यूजिंग इट, सो दैट हेल्प्स. सेकेंड, द मार्केट इज बिग, राइट? ये इंडिया इज नॉट अ मार्केट वेयर द विनर टेक्स ऑल. Okay. Is there a place for 10 players? There is place for 10 players. You just have to ensure that you are one of the 10. Okay. So there is enough pie for everyone. Yeah. There are 95, 100 million merchants. सबके लिए धंधा है. हाँ. तो ऐसा सबके लिए धंधा है, right. और आज भी आप मतलब हम सुनते हैं कि यूपीआई इतना ट्रांजैक्शन करता है, लाखों लाइक मिलियंस एंड बिलियंस में ट्रांजैक्शन की अमाउंट जाती है एंड ऑल. एंड आउट ऑफ द सर्कल, मतलब ये इस साइड से बाहर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, बट स्टिल मुझे ऐसा लाइक व्हेन आई से इट देयर आर नॉट लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट. तो आपको क्या लगता है कि क्या हर्डल्स हो सकते हैं कि नॉट लॉट ऑफ प्लेयर्स आर इन दिस सेम बिजनेस? बिकॉज अगर आप करंटली देखोगे तो देयर आर फ्यू प्लेयर्स ओनली. So there are a lot of players. Okay. There are a lot of players. So अगर आप RBI का वेबसाइट देखोगे कि पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस कितने लोगों को मिले हैं, तो 70 people are there. Okay. That is pretty large, right? Okay. But you are seeing only 2-3. माने आप फोन पे देख रहे हो, आप गूगल पे देख रहे हो, जो TPAP है, राइट? या पेटीएम देख रहे हो, वो TPAP है. बट there are enough and more, right? Okay. So I think, is the market big? The market is big. Are there a lot of players? There are a lot of players. Will Okay. there be consolidation? There will 100% be consolidation. अच्छा. So there is lot of barriers also to enter for the new people? यार बैरियर ये है कि वन के एस्टैब्लिश प्लेयर को मारने के लिए खर्चा करना पड़ेगा. उसके अगेंस्ट जो भी कंपनी आ रही है उसको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट? वो एग्जिस्टिंग, अगर मेरे को आपको मूव करना है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के लिए से, तो आपको कुछ अच्छा देना पड़ेगा, राइट? अभी अच्छा देने में क्या मैं वो लॉस कर रहा हूँ? क्या दैट इज गुड इनफ फॉर यू, राइट? एंड वंस आई एम डूइंग अ लॉस, हाउ विल आई मेक मनी? सो दीज आर क्वेश्चंस दैट वन नीड्स टू आस्क himself, right, before entering the business. So the entry barriers are large because the margins are not very high, right? But exit barriers are low क्योंकि आप कभी भी खत्म हो सकते हो धंधे में. ओके. कैसे? क्योंकि पैसा नहीं बनाओगे आप. हाँ, सो बेसिकली कैक आपका बहुत ज़्यादा है. हाँ, और तो उसमें फिर आपका पैसा नहीं बनाओगे तो कभी ना कभी तो वो आप बर्न आउट हो जाओगे. करेक्ट. आज भी आपके हिसाब से कैश वर्सेस ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में वी कैन कंसिडर ऑल द कार्ड्स एंड यूपीआई, क्या रेशियो होगा? लाइक आज भी अगर आप देखो. So somebody was telling me cash is coming back in the market, right? But see, I'm focused more on online, right? I'm seeing online growing month on month and year on year. Right. So will cash reduce? It will reduce, right? Because the newer generation, right, your generation and the generation after you is not going to carry cash, right? Correct. For him the mobile is his life, right? So if you look at the age group of 22 to let's say 26 27, they don't use cash at all. Correct. Right? And uska future generation will be similar. So I'm saying eradicating cash from the market or the country is not going to happen ever, but will the use keep reducing? 100%. Okay, fair enough. So मतलब हाँ, क्योंकि like एक जनरेशन हमारे आगे भी तो है, like हमारे पेरेंट्स. My father uses only cash. Right? मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी यूपीआई नहीं यूज करते. They prefer that only. और वो उन्हीं like they are comfortable, right? They don't want to. It's a new technology. They don't want to adapt. Correct. मैंने अडेप्ट कर लिया, राइट? आप मेरे से शायद एक स्टेप, मैं शायद 2000 कैश रखता हूँ, आप वो भी नहीं रखते हो. करेक्ट. 22 से 28 साल वाला तो वो भी नहीं करता है, राइट? हिज लाइफ इज द 2x4 इंस्ट्रूमेंट. करेक्ट. एंड आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कि हाँ, मैं थोड़ा तो कैश रखता हूँ, बट राइट. तो कैश वाला तो हो गया. एंड देन सो यूजुअली मतलब कैश वाला पॉइंट तो ये भी है कि इट्स वेरी रिस्की टू कैरी एंड ऑल. समटाइम्स ऐसा भी होता था, इसलिए कैश का मे बी लाइक रिड्यूसिंग. मतलब
कैश को ये रिप्लेस करने का मेरे हिसाब से ये रिस्क वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा था कि हमने यूपीआई क्यों एक्सेप्ट कर लिया, लाइक डिजिटल ज़्यादा क्यों एक्सेप्ट कर लिया इनिशियल फेज में. It's easy, no, it's easy. See, it's easy to use and operate, right? UPI हुआ है दो कारण की वजह से. एक तो कोविड, डिमॉन, हाँ, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो कैश कैसे करोगे आप, राइट? तो आपको कहीं भी ट्रांजैक्शन करना है तो आप यूपीआई करते थे, राइट? दूसरा कोविड, आपको कोई जगह पे कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगानी थी, और एक बार आपको जो चीज़ की आदत लग जाती है वो आप छोड़ते नहीं हो. हाँ, मतलब जो कंफर्ट, एक कंफर्ट है ये. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ रिकॉर्ड, राइट, कि कहाँ खर्चा किया, क्या किया. सो इट्स एन ईजी थिंग. करेक्ट. हाँ, मतलब इजी तो है, बहुत इजी है. जब हम कैश एंड यूपीआई की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरेशन को ये भी लगता है कि आजकल डिजिटल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, लाइक यू नो, लाइक जैसे डिजिटल अरेस्ट, एंड देर आर नाउ एंड देन एवरी डे और लाइक इन अ मंथ यू विल सी फ्रॉड हैपनिंग. तो वो भी एक रीज़न है कि पेरेंट्स लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं. बट now you see this industry very closely and you keep all the records of types of frauds that is happening and all. So as a advisor, like you know, because you see from a different lens, कि आप मुझ जैसे को क्या एडवाइस दोगे कि like how I will not fall in that trap, because it's a stress. I mean, no one wants to get into that. तो आप कैसे लोगों को बचना चाहिए उससे? यार कोई भी सी सिंपल थिंग्स है उसमें. कोई जस्ट टू टेल यू, नंबर ऑफ फ्रॉड्स इन इंडिया आर फार लोअर देन ग्लोबल. अच्छा, सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई पे हो रहे हैं या कार्ड के थ्रू हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप नंबर ऑफ फ्रॉड्स देखोगे तो बहुत कम है, राइट? इवन परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस. बट यार सिंपल थिंग्स यार, आपको कोई लिंक आए तो आप खोलो मत वो लिंक को, राइट? अगर आपको कोई फ़ोन आए या डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है, राइट? इफ़ यू फॉल फॉर इट तो आप वैसे भी उसके लिए फिनेंस या फिनटेक का कोई ज़रूरत नहीं. आप ऐसे ही फ्रॉड कोई भी कहीं कुछ भी कर लेगा. सो यू नो, यू हैव टू बी मोर केयरफुल. एंड आई थिंक नाउ द बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर डूइंग इनफ अवेयरनेस कैंपेन्स टू इंश्योर दैट पीपल डोंट फॉल फॉर दिस. बट क्या आप ये इरेडिकेट करोगे? वो कभी नहीं होगा. ऐसा तो नहीं है कि यार यूएस में फ्रॉड नहीं होते. अच्छा, हाँ, मतलब across the world हो ही रहा है. This is there. You know, frauds will find different ways of doing their business. You will also have to find different ways of stopping their business, right? So Jamtara is India is that. Yeah, so वो करना पड़ेगा. But I feel that you know there is a lot of awareness now. Simple things there. अभी जब भी हर बैंक का अभी .in हो गया है, right? So .com में क्या आप बैंक का रेप्लिका बना सकते हो और वहाँ फ्रॉड कर सकते हो. सो आरबीआई, गवर्नमेंट एंड द इकोसिस्टम इज ऑल्सो ट्राइंग वेरियस वेज टू मेक फ्रॉड्स डिफिकल्ट. करेक्ट. क्या आप इरेडिकेट कर सकते हो? शायद नहीं. बट आर वी मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द फ्रॉड्स? यस, 100%. हाँ, मनी ट्रेल को बचा रहे हैं. लाइक अभी मैंने सुना कि बहुत सारा पेमेंट रिकवर भी हो रहा है. राइट. सो बिफोर इट मूव्स फ्रॉम द बैंक, बैंक्स आर आल्सो ऑब्जर्विंग कि कोई जो डोरमेंट अकाउंट है उसमें ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको बाहर मत जाने दो, देखो क्या है. सो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग. सो इट इज़ बीइंग डन एट द इकोसिस्टम लेवल. राइट. तो सारे जन इसमें. So one is of course building awareness. Second is from an ecosystem. Whatever you need to do to protect fraud, you need to do that. Right. Correct. और फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है? लाइक जैसे अभी वो कार्ड की जरूरत नहीं है, फोन में ही आप कर बाहर चल रहा है ये. इंडिया में टाइम लगेगा अभी. अच्छा. इंडिया में टाइम लगेगा बिकॉज इसमें 2-3 चीज़ है. आपको एक तो NFC एनेबल्ड फ़ोन चाहिए, राइट? अब वो NFC एनेबल्ड फ़ोन 12-15 हज़ार का आता है. हाउ मेनी मर्चेंट्स विल बी एबल टू अफोर्ड दैट NFC एनेबल्ड फ़ोन? दूसरा, मर्चेंट दुकान पे होना चाहिए. मोबाइल तो उसके पास है, मोबाइल तो दुकान पे छोड़ के जाएगा नहीं, राइट? तीसरा कि आप टैप एंड पे 5,000 तक ही कर सकते हो. लिमिट है, राइट? 5,000 के ऊपर क्या आप किसी के मोबाइल पे पिन डालोगे, राइट? चौथा कि अगर आप QR से कर सकते हो पेमेंट आपके मोबाइल के थ्रू, किसी और के मोबाइल को हाथ लगाए बिना, तो क्या आप हाँ, राइट. So QR will be for a UPI is here to stay. UPI is here to stay. तो ऐसा कुछ बहुत गेम चेंजर तुरंत नहीं होना. So within UPI there will be a lot of things that will happen, right? So like I told you, credit card on UPI, credit line on UPI. This will be there. So there will be variants of UPI which will come up, but UPI is here to stay. कहीं नहीं जा रहे.